Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I'm going to tell you people something about the pattern of biology paper in intermediate. I have observed that in the last year I observed that the students, even they didn't know what is the pattern of the paper. So that was very much disappointing. So this year I have tried to give you people the information regarding the question paper, what sort of the questions you will come across in your examination. One of my friend from Sadikabad, he said that you are students of the Upper Punjab and the institutions like Lahore and Pindi and Upper Punjab. They can well understand the English language, but the students from the areas like remote areas, particularly Sadikabad and Rajanpur and some other areas he mentioned. So taking into consideration the suggestion of that friend, Professor Khalid Akram Sahi Saab, I would like to mix the Urdu and English today. Okay. So मैं ये बताऊंगा कि पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कोई चेंज नहीं आया. राइट, you have to prepare a slide, okay, and after preparation of that slide you have to draw its labeled diagram. Okay, if you draw a labeled diagram, it means that you have prepared the slide. I did observe last year that even the students, they didn't know how to draw. Okay, okay, accepted. You haven't prepared the slide, but you must at least know how to draw. Okay, for example, that material that has been provided to you people, that is, say for example, mesophyll cells. Okay, are those can be what stomata. That material can be what are spirogyra. Okay, that material can be what the pollen grain. That material can be the epidermal cells of onion. Okay, that material can be what leg muscle of cockroach. So these sort of the materials could be provided to you, and those are not known even to the examiner. Those are sent to the examiner in the form of key. Okay, and in the key it is written. So the paper setter may ask you people mesophyll cells, the stomata, spirogyra, or pollen grain, or nostoc filament, or epidermal cells of onion, or leg muscle of cockroach. Anything can be. Okay, so if you know all these things,
at least I request you people that you must be able to draw the labeled diagram so that half marks could be given to you people. Okay, one. For example, if you have to draw the labeled diagram of onion cells, it is too easy. Okay, like this. Okay, how much it is difficult. So these are what the onion cells, epidermal cells. If you have drawn, you would get at least the half marks of this slide. Okay, how much marks those are? Is it difficult? I think you will say no. Okay, so this is the diagram of the slide as you see in your in your in your uh, in your slide, prepared slide, I mean. Okay, next is what question number 2. In question number 2, in the last pattern, you were supposed to answer to the question attached with there was an attached question. For example, what is inflorescence? Okay, what is gamosepalous? And what is epipetalous? So and so. That question has been omitted now. Okay, mind it. I would like to translate in Urdu. पहले ये होता था कि एक सवाल इसके साथ एडिशनल होता था, इसके साथ अटैच्ड होता था. अब वो नहीं है. आपको या केलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम या इसकी जगह केलिक्स की जगह फ्लावर हो सकता है. ठीक है, क्रोला की जगह गायनेशियम हो सकता है, एंड्रोशियम की जगह फ्लोरल फार्मूला हो सकता है. Okay, I have already uploaded a lecture regarding description of flower and description of calyx, description of corolla, description of androecium, description of gynoecium. And in certain next lecture, I will tell you people how to describe the floral formula and floral diagram. Okay, you may come across what floral diagram. ये सारी चीजें पहले भी थी. अब ये हुआ है कि एक जो एडिशनल सवाल इसके साथ होता था वो नहीं होगा. तो पहले 4 मार्क्स का होता था, अब ये 3 मार्क्स का है और ये भी 3 मार्क्स का हो गया है. ठीक है, 4th मार्क जो मार्क आपको मिलता था ड्यू टू व्हाट द एडिशनल क्वेश्चन वो नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट है व्हाट क्वेश्चन नंबर 3. पिक आउट द डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड. ये स्केलेटन आपके सिलेबस में एक ही है एंड दैट इज व्हाट स्केलेटन ऑफ फ्रॉग. ओके, 1. अब वो स्केलेटन जो है उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? स्कल में याद रखना, स्कल में आपको वेंट्रल साइड भी पूछी जा सकती है, डॉर्सल साइड भी पूछी जा सकती है. ठीक है मेरे बेटा, आपने क्या करना है, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों को रट लो. ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा भी सही. ठीक है, ये मेरा वादा रहा. आपने जो पेक्टोरल गर्डल है उसकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड, पेल्विक गर्डल डॉर्सल और वेंट्रल साइड, फिर एटलस वर्टिब्रा, एक्सिस वर्टिब्रा, टिपिकल वर्टिब्रा और 8th वर्टिब्रा, 9th वर्टिब्रा, ये भी आपने याद कर लेने हैं. ठीक है, और
बाज दफ़ा ऐसा होता है कि यूरो स्टाइल आपको दे देते हैं समटाइम्स, ठीक है, यूरो स्टाइल दे देते हैं। कोई एग्जामिनर फसडी बैठा हो तो वो आपको दे देता होता है, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है भैया कैसे, उसमें होते हैं व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4 में होता है आइडेंटिफिकेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन। देखें क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 मार्क्स हो गए। ये स्लाइड है, उसको प्रिपेयर करना है और उसकी डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, फ्लावर डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, स्लाइड प्रिपरेशन प्लस डायग्राम। इसके मार्क्स कितने हैं, 3। इसके कितने हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्केलेटन, इसके कितने मार्क्स हैं, 3, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास आइडेंटिफिकेशन आपने करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी होती है, टोटल 5 स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है। 5 स्पेसिमेन में आपने, ये होते हैं A B C D और E। ये स्पेसिमेन हो सकता है से दैट कैन बी अ प्रोटोजोन, एनी प्रोटोजोन, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम हो सकता है। ये पैरामीशियम नहीं होता भाई, पैरामीशियम, ओके, मैं थत्था नहीं हूं, ओके। नेक्स्ट है व्हाट, अमीबा हो सकता है, और एंटमीबा हो सकता है, एंटमीबा, हिस्टोलैंटिका, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा कोई प्लांट और एलजी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई से क्रॉस सेक्शन ऑफ वेन हो सकता है, आर्टरी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ लेग मसल हो सकता है ऑफ कॉकरोच, ठीक है जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो दो स्पेसिमेन हैं, इनमें से एक होता है एनिमल स्पेसिमेन और एक होता है प्लांट स्पेसिमेन। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट स्पेसिमेन है, प्लांट स्पेसिमेन भी हो सकता है, यहाँ एनिमल स्पेसिमेन भी हो सकता है, याद रखना, और एनिमल स्पेसिमेन, ठीक है जी। इसकी आपने क्या करने होता है, फाइलम लिखना होता है, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है कि ये प्लांट स्पेसिमेन होता ही नहीं है, एनिमल स्पेसिमेन होता है और उसका फाइलम आपने बताना है। यहाँ पर जो ई स्पेसिमेन होता है उसका आपने क्या बताना होता है, उसकी क्लास बतानी होती है और वो हमेशा कॉर्डेट होता है, ठीक है जी, कॉर्डेट एनिमल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आगे से स्नेक है, ठीक है, तो इसकी क्लास कौन सी लिखेंगे, क्लास क्या लिखेंगे भला, रेप्टिलिया, ठीक है। अच्छा,
अगर मंकी है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्लास, मैमेलिया, ठीक है। अगर ईगल है तो उसकी क्लास क्या लिखेंगे, एवीज। बर्ड्स नहीं लिखना, और याद रखना ये मैमेलिया होता है, मैमल नहीं होता। स्नेक की क्लास रेप्टाइल नहीं होती। मैं टीचर से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी बताया करें सही तरीके से। जैसे फ्रॉग है तो उसकी क्लास एम्फीबिया बता रहा है, एम्फीबियन नहीं, एम्फीबिया है क्लास। क्लास रेप्टाइल नहीं है, रेप्टिलिया है। क्लास मैमल नहीं है, मैमेलिया। क्लास बर्ड्स नहीं है, क्लास एवीज है। ओके, so in this way you have to tell the class in this part, I mean E part. Okay, यहाँ पर आपने फाइल नेम बताना है। इनका आपने क्या बताना होता है, आइडेंटिफाई करके उसका नाम बताना होता है, और एक रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने बतानी होती है, दैट्स ऑल। ठीक है, नो वो नाम बताएं तो चलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपने क्या करना होता है, ये मैं अब रेज कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा इसके मार्क्स कितने हैं, वो थे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके कितने होंगे, 5 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है व्हाट परफॉर्म द experiment provided to you by examiner. I'm sorry, allotted to you by examiner. Allotted to you by examiner. अब उसमें होते हैं 1 2 और 3। इसमें आपने क्या करना होता है, आमतौर पे ऐसा होता है एक बायोकेमिकल टेस्ट जरूर आता है, ठीक है, लाजमी नहीं है, मैं कोई गेस्ट नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। एक से आ सकता है आपको डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द गिवन सॉल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आपको आ सकता है स्टडी द प्रोसेस ऑफ study the opening and closing of stomata. Closing of stomata. ओके, अच्छा एक आपको जो जो तीसरा आ सकता है, फॉर एग्जांपल dissect the animal provided, dissect the animal provided and expose its dash system. अब डैश सिस्टम में क्या आ सकता है, वो क्या हो सकता है, दैट कैन बी डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, आर्टिलरी सिस्टम हो सकता है, वेनस सिस्टम हो सकता है, हार्ट हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये फ्रॉग के हवाले से। अगर आपको एनिमल आ गया है, से काकरोच आ गया है, तो काकरोच में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आ सकता है, और उसका वो आ सकता है नर्वस सिस्टम आ सकता है, ठीक है। वो मैं आपको अलग अलग से उसके भी लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको समझा भी दूंगा। ओके, अब इसके जो मार्क्स हैं, हर एक जो सवाल होता था
इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी एक अटैच्ड क्वेश्चन होता था, राइट? और अब नहीं होगा। इसके साथ जो एक्सिलरी क्वेश्चंस होते थे उनका वो आपको नहीं आएंगे। सो दिस इज हाउ द पैटर्न ऑफ योर पेपर हैज बीन चेंज्ड। तो इसके भी मार्क्स जो है वो रखे गए हैं कितने? 10 मार्क्स, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, इसके 3 मार्क्स हैं, इसके 3 मार्क्स हैं। ये क्या है? नोटबुक है, ठीक है जी, और ये है वाइवा वॉच है, ठीक है जी। इसके भी 3 मार्क्स हैं, ठीक है, और इसके भी 3 मार्क्स हैं। अब हम गिन लेते हैं। 3 + 3 ये हो गया 6 और 10 कितने हो गए? 16। 16 प्लस सॉरी 16 + 5 it makes how many? 21 है ना? 21 and 9 it makes total of 30 marks. So this is how the pattern of paper has been changed to some extent, not completely. Okay. अगर आपको समझ आ गया हो तो जैसे इस वक्त कोई काफ़ी सारा टाइम हो गया, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग फिर हैरान होंगे, परेशान होंगे और आपको मेरे से हमदर्दी होना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त काफ़ी सारा टाइम हो गया और मैं आपके लिए ये अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसी तरह से अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि शेयर टू योर लव्ड वंस।